ॐ कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु विचार आप जी नूं सरवण करा सकां। जो एक प्रकरण आरंभ कीता है, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जो पशु पंछियां दा जीव जंतुआं दा जिक्र आया है, आपने कीड़ी दी विचार सरवण कीती है, कुकर दी विचार सरवण कीती है। तीसरे नंबर ते जो घोड़े का जिक्र आया है गुरु ग्रंथ साहब दे विच, वो विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह जिस वक्त एक लंबी उदासी करके 12 साल बाद जब सच्चे पातशाह जी अपने घर पहुँचे हैं ननकाना साहिब, मरदाने नूं तां महाराज ने घर भेज दिता, लेकिन आप घर नहीं गए हैं। भाई मरदाना जी नूं हुक्म सी भी जल्दी अपने परिवार नूं मिल के ते वापस आ जा, असीं फिर जाना है जगत का उद्धार करन वास्ते। भाई मरदाना जी पिता कल्याण दास जी माता तृप्ता जी नूं मिलन चले गए हैं, तो माता जी पुछते ने मेरा पुत्र कित्थे है, मेरा लाल कित्थे है। गुरु नानक साहब ने क्योंकि मरदाने नूं हुक्म कीता सी भी किसी नूं दसना नहीं है साडे बारे, मरदाना चुप कर गया, कोई जवाब नहीं दिता है। माता पिता की हालत देख के अंदरों चाहता तो है भी मैं दसां भी कित्थे बैठे ने सतगुरु, पर क्योंकि हुक्म सी तो फिर दसिया नहीं है। लेकिन माता तृप्ता जी जानते ने भी ये हुण जिथे भी जाएगा ना गुरु नानक कोल ही जाएगा, ये होर किधरे नहीं जान लगा। भाई मरदाना जी उत्थों आग्या लैके चल पे ने, माता तृप्ता जी पिछे पिछे चल पे ने। उन्हों दे पिछे पिता कल्याण दास जी वो भी चल पे ने, शहर वासी भी चल पे ने, सतगुरां दे जिहड़े हाणी सन वो भी चल पे ने।
ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਘਰ ਚਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 15 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਲਏ ਨੇ, ਘਰ ਚਲੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਊਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਚਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਇਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਚਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜੀਏ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਗਊ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਊਠ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਗਊ ਲੈ ਲਈ, 2 ਗਊਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ,
इस तरह व्यापार चलता हुंदा सी। करंसी नहीं सी उस वक्त। उस वक्त का ये सब तो वड्डा पशु धन घोड़ा है। असी सिख इतिहास दे विच असी पढ़ते हाँ, गुरुआं दे समय दे विच 1.25 लाख रुपए दे घोड़े उस टाइम ते सतगुरां दे दरबार विच भेटावां अर्पण होईयां। 1.25 लाख दे घोड़े। अज असी उन्हां दी कीमत लाइए ना तो उस हिसाब नाल अज ते करोड़ों दे विच चली जाती है। वैसे भी कहा जाता है कि घोड़े की कोई कीमत निश्चित नहीं की जा सकती है। घोड़े दियाँ वखरियां वखरियां क्वालिटियां ने, अपने अपने इलाकों के बड़े बड़े महंगे घोड़े ने, जिहदे विच सब तो ज़्यादा महंगे घोड़े होया करते सन काबुल कंदार दे, अरब देशों के, जिन्हों अरबी घोड़ा भी असी कह देने हैं। बहुता व्यापार घोड़ियां दा अरब दे विच ही आउंदा सी। लोकी उचेचे तौर ते घोड़े खरीदण उत्थे जाया करते सन। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी जिहड़ी साखी है नमाज पढ़न वाली, महाराज ने नवाब नूं कह दिता सी भी तेरा मन ते काबुल दे विच घोड़े पिया खरीदा है, क्योंकि उन्हें बंदे उत्थे भेज रखे सन घोड़े खरीदण वास्ते। उत्थे घोड़ियां दी नस्ल बहुत वधिया सी। उचेचे तौर ते लोग उत्थे घोड़े खरीदण वास्ते जो है जाया करते सन। घोड़ा उन्हां दिनां दे विच सफ़र दा एक सब तो तेज साधन सी, सब तो तेज साधन। घोड़े दी स्पीड दौड़न दी तकरीबन कोई 40 किलोमीटर तो लैके 50 किलोमीटर तक घोड़ा स्पीड नाल दौड़ लैंदा और बहुत देर तक दौड़दा है, थकदा नहीं है। उस वक्त आउण जाउण दे साधन सन। एक जगह तो दूसरी जगह जाण वास्ते घोड़ियां दा इस्तेमाल किया जाता सी। तेज रफ्तार नाल दौड़दा सी, मंजिल ते जल्दी पहुँच जाते सन। घोड़े ताकत दे प्रतीक ने। घोड़े शायद तुहानूं पता है कि नहीं, घोड़े नूं संपूर्ण मर्द गिणिया जाता है सब जीवां दे विच। क्योंकि मैं एक दिन पढ़िया सी, घोड़ा एक इक्को ही जानवर ऐसा है जिहदे अस्थन दे निशान नहीं होंदे हन, अस्थन दे निशान नहीं होंदे हन। बाकी हर जीव दे विच अस्थन दे निशान होंदे ने। इहदा मतलब उहदे विच कुछ अंश जिहड़े ने वो इस्त्री दे ने। घोड़े दे विच ऐसा नहीं होंदा है। घोड़ा संपूर्ण तौर ते मर्द गिणिया जाता है, पुरुष गिणिया जाता है संपूर्ण तौर ते, क्योंकि घोड़े दे अंदर अस्थन दे निशान बिल्कुल नहीं होंदे। ताकत इहदे विच इतनी होंदी है कि अपने वजन तो भी ज़्यादा वजन उत्ते रख के ते दौड़ सकता है। अपने मालक नूं उत्ते बिठा के बहुत लंबा, मैं सिख इतिहास पढ़िया, 100 किलोमीटर का सफ़र घोड़ियां दे उत्ते रोज़ कर लेंदे सन। इतनी ताकत दे विच है। अज भी असी देखिए ना तो मशीनरियां दी जो पावर गिनी जाती है ना, मशीनां दी पावर, जैसे मोटरां चलदियां ने, इंजन बनते ने, उहदे विच पावर, हॉर्स पावर नापी जाती है भी इतने हॉर्स, इतने घोड़ियां दी पावर है इस विच। क्योंकि घोड़ा जो है वो ताकत का प्रतीक है। घोड़ा घोड़ा समझदार बहुत होता है। इसनूं विद्वानां ने, आलमां ने ऐसा मनिया कि घोड़ा मनुख की श्रेणी दे बहुत करीब है, बहुत करीब है।
ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਪਾਇਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਜੈਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੇ ਘੋੜਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। बैठ जाए तो समझो कि घोड़ा बीमार है। हालांकि कदी कदाई घोड़े बैठ भी जाते हैं, पर जे बहुती देर घोड़ा बह गया समझो घोड़ा बीमार है। फिर कदी बहता नहीं है। ये खड़े खड़े ही सौ सकता है और इतना सुचेत है कि इसनूं नींद आ जाती है खड़े खड़े, पर फिर भी ये डिगदा नहीं है, कदी नहीं डिगदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਵੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਇਸਨੇ। ਜੈਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੇਤਕ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਲਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਸੀ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੀਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤਰੀਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਘੋੜੇ 'ਤੇ, ਨੀਲੇ 'ਤੇ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਡੀ ਲਾਈ, ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ
नीले तो थले उतरे ने, ज्यों जमीन ते पैर रखिया तो वापस उपर चढ़ गए ने। जिवें करंट लगता है ना कोई, इस तरह महाराज वापस उसे तेजी दे नाल, उसे स्पीड नाल उत्ते चढ़ गए। तो सिखां ने पूछया भी महाराज की होया, एकदम उतरे हो फिर वापस चढ़ गए हो। महाराज कहते ने अगे देख के आओ अगे की है। सिखां ने जाके अगे पता किया तो पता लगा कि अगे तंबाकू दे खेत ने। महाराज अगे तंबाकू दे खेत ने। सतगुरु कहते ने बस इसे वास्ते अगे नहीं जाता है, इस वास्ते ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का जो घोड़ा है नीला, जिसका शरीर घोड़ियां वाला है, पशुओं वाला है, लेकिन फिर भी वो तंबाकू दे खेत विचों निकलना पसंद नहीं करता है। अज तो लोग तंबाकू खाई जाते हैं, हत्थ विच कड़े पाए हुए ने, साबत सूरत कहण नूं तां वो सिख अखवांदे ने, वो तंबाकू खाई जाते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी का घोड़ा जो है इतना समझदार सी, नीला सतगुरु जी दे इशारे नूं समझदा सी, दौड़दा बड़ी तेज सी, फुर्ती बड़ी सी उस विच। इसे वास्ते पंगाणी दे जंग दे विच हरी चंद हंडूरा सतगुरां दे उत्ते हमला करन तो पहले महाराज दे घोड़े नूं मारना चाहता, क्योंकि वो जानदा सी कि ये घोड़ा बड़ा तेज है, वफादार बहुत है, स्पीड बड़ी है। बिजली दी स्पीड दे नाल हज़ारां दी गिणती दे विचों अपने मालक नूं सुरक्षित कढ के बाहर लै जांदा है। बड़े बड़े वड्डे नाले टप जांदा है, पार कर जांदा है, ताकत बड़ी है इहदे विच। पंगाणी दे जंग दे विच हरी चंद हंडूरे ने पहला वार गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घोड़े ते कीता सी, क्योंकि वो जानदा सी कि ये बहुत समझदार है, वफादार है, ताकतवर है। महाराज ने उसका जिक्र किया है। हरी चंद कोपे कमाणं संभारं, प्रथम बाजियं ताण बाणं प्रहारं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने पहला तीर उसने कढ़ के मारिया घोड़े नूं, भी इस घोड़े नूं पहले खत्म करना है। जे घोड़े नूं खत्म कर दिता गुरु गोबिंद सिंह की ताकत अद्धी रह जाएगी। वो इस तरह सोचदा सी, क्योंकि बड़ा वफादार घोड़ा सी, ताकतवर बहुत सी, समझदार बहुत सी। सारा ये जंग का जिक्र तो मैं ना करा। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस घोड़े दे नाल प्यार भी बहुत करते सन, समझदार बहुत होंदा है घोड़ा। घोड़े दे विचों जो गुण साडी झोली विच महाराज ने पाए हैं, क्योंकि घोड़े का बहुत जिक्र गुरु ग्रंथ साहब दे विच है। घोड़े नूं धन दे रूप विच ही मन्निया, घोड़े का दान भी किया जाता है, घोड़े का दान भी बड़ा वड्डा मन्निया जाता है, क्योंकि घोड़े नूं धन मन्निया गया। कई लोग इस धन दे विच ही उलझ के अपना जीवन भी बर्बाद कर लेंदे हैं, कई लोग इस तरह भी कर लेंदे ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चौथे रूप गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने तो एक बाणी का नाम ही घोड़ियां रखिया है, घोड़ियां। क्योंकि जदों बंदे दा विआह हुंदा है ना, घोड़े ते चढ़दा है, वो घर विच खुशी का माहौल होंदा है, घोड़ियां गाईयां जांदियां ने। महाराज सच्चे पातशाह ने जो घोड़ी गाउण दा जो जिक्र किया है, घोड़ियां दे सिरलेख हेठ जिहड़ी बाणी सतगुरां ने दर्ज की है गुरु ग्रंथ साहब दे विच, उस विच महाराज वडहंस राग विच वडहंस महला चौथा घोड़ियां सिरलेख है उसका।
सतगुरु कहते ने मनुख दा ये जिहड़ा शरीर है ना, ये भी एक घोड़ी है। मनुख दा शरीर देह तेजन जी राम उपाइया राम। परमात्मा ने जो साडा शरीर पैदा किया है, ये भी एक घोड़ी है, घोड़ी की तरह है। भगत कबीर साहब कहते ने साडा जिहड़ा मन है वो एक घोड़ा है। मन साडा शरीर रूपी घोड़ी दे उत्ते सवार हो के गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह कहते ने मनुख अपनी मंजिल तक पहुँचे, अपने प्यारे तक पहुँचे। जैसे पुरातन समय दे विच यात्रा करनी होंदी सी ना, घोड़े ते बैठ के अपनी मंजिल तक पहुँच जाते सन। महाराज इस तरह जिक्र कर रहे हैं कि देह तेजन जी राम उपाइया राम, तन मानस जन्म पुण्य पाइया राम। धन है साडा ये जन्म जो परमात्मा ने सानू दिता है। महाराज कहते ने शरीर एक घोड़ी की तरह है। गौड़ी राग दे विच भगत कबीर साहब ने सारा शब्द उच्चारण किया है। भगत कबीर कहते ने दे मुकाम लगाम पहरावो, सगल तजीन गगन दौरावो। भगत कबीर साहब जी कहते ने कि मैं अपने मन रूपी घोड़े नू लगाम पा के उन्होंने वस विच कीता होया है। निंदा चुगली तो बचना, अपने मन दे उत्ते कंट्रोल करना, वासनावां वाल इसनू नहीं जान देना। इनू भगत कबीर साहब कहते ने मैं लगाम पा के ते अपने वस विच कीता है। घोड़े नू जिथों तक लगाम ना पाई जावे घोड़ा वस विच नहीं आउंदा है, जिथों तक लगाम ना पाई जावे। लगाम अगर पा दी जावे, घोड़े नू अगर वस विच कर लिया जावे, फिर घोड़ा अपने मालक दे इशारियां ते चलदा वे। फिर जेड़ा घोड़ा अपने मालक दे इशारियां ते चलदा है वो अपनी मंजिल ते पहुंच जांदा है। जो अपने मालक दे इशारियां ते चलदा है। जैसे भाई लहणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे मिलाप वास्ते पहुँचे ने, घोड़ी दे उत्ते चढ़ के आए ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह नू पुछदे ने भी मैं नानक नू मिलना है। मैं पिछले दिन ये सारी कथा सरवण कराई है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने लगाम पकड़ ली है ते चल पे ने। अगे जाके धर्मशाल दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन होए ने। जिसने अपनी लगाम गुरु दे हथ विच दे दी है ना, वो एक दिन मंजिल ते पहुँच ही जाता है, वो पहुँच जाता है। अर्जुन जानदा सी कि जे मेरे घोड़ियां दी, मेरे रथ दे घोड़ियां दी लगाम अगर कृष्ण दे हथ विच आ जाए, मेरी हार कदी नहीं हो सकती है। फिर मैं कदी हार नहीं सकता। तो मेरी जो घोड़ियां दी लगाम है, मेरे रथ दी जो लगाम है, अगर कृष्ण दे हाथ विच आ जाए, कृष्ण जैसा अगर मेरा रथ वाहक बन जावे, तो फिर मैं हार नहीं सकता। भाई लहणा जी ने अपने घोड़े की लगाम दी है गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों विच, ते वो पहुँच गए ने मंजिल तक। गुरु नानक का दूसरा रूप बन गए ने। अर्जुन ने अपने घोड़ियां की लगाम दी है कृष्ण नू, जंग जित के बादशाही प्राप्त की है उन्होंने। असी भी अपने मन की लगाम अगर गुरु के हाथ विच दे दईए, किस तरह दे दईए? तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। अगर तन करके मन करके तन करके अगर अपना आपा जो है वो गुरु नू सौंप दईए, हुक्म अगर अपने गुरु दा मनीए असी, तो एक दिन असी भी मंजिल तक पहुँच सकते हाँ। इस मन रूपी तन रूपी घोड़े दे उत्ते सवार होके, इसनू निंदा चुगली तो बचा के, शब्द दी गुरु दे उपदेश दी इसनू लगाम पा के
जे इसनूं असीं वस विच कर लईए ते लगाम अपनी मालक दे हत्थ विच दे दईए, एक दिन असीं जीवन यात्रा नूं सफल कर सकदे हां, मंजिल तक असीं पहुँच सकदे हां। जे नहीं करांगे तो फिर भटकदे रवांगे। फिर असीं भगत कबीर साहब जी कहंदे ने कि मैं जो है अपने इस मन नूं लगाम पा के इस नूं वस विच कीता होया है। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने जीवन दा मुੱਢ जो है उहदी विचार करिए। साडा जन्म क्यों होया है, असी जाना किथे है। इस सारी विचार करना समझो इस घोड़े दे उत्ते सवार होना है। फिर भगत कबीर साहब जी कहंदे ने कि सहज के पावड़े पग धर लीजे। सहज के पावड़े जैसे घोड़े की रकाब होंदी है, रकाब दे विच असीं पैर पाने। अगर घोड़े की रकाब विच पैर ना पाए जान, सवारी करना फिर मुश्किल हो जाता, डिग्गण का डर होंदा, क्योंकि घोड़ा दौड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा, फिर डिगेगा। सहज के पावड़े, सहज अवस्था दे विच आ जाना। ये भगत कबीर साहब कहंदे ने मैं रकाब दे विच पैर पाया होया वे, सहज दी रकाब विच। फिर चल रे बैकुंठ तुझे ले तारूं। है मेरे मन, चल इस घोड़े दे उत्ते सवार हो के तैनू बैकुंठ दी परमात्मा दे घर दी यात्रा करावां। तो फिर कबीर साहब कहंदे ने हीचे तां प्रेम के चाबुक मारूं। ते जे तू अड़ी करें, तू चले ना, तो फिर मैं तैनू प्रेम दे चाबुक मार के प्रेम दे नाल समझा बुझा के तैनू परमात्मा दे घर तक लैके जावांगा। क्योंकि सवार ने चलाना है, चलना घोड़े ने है। घोड़ा अगर काबू ना होवे मंजिल तक कदी नहीं पहुँच सकता है, अगर घोड़ा काबू विच नहीं है तो। भगत कबीर साहब जी कहंदे ने कहत कबीर भले असवारा, बेद कतेब ते रहे निरारा। भले असवार ਉਹ ने ਜਿਹੜੇ बेद कतेब ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੈਕੁੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ प्रथाएं बहुत सारिया पंक्तियां सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज कीतियां ने। बहुत सारे नाम घोड़े दे आए हैं, घोड़े शब्द भी आया है। हाय वर, है कहंदे ने घोड़े नूं, वर कहंदे ने सोहणे घोड़े। फिर तुरंग शब्द भी आया है, तुरे शब्द भी आया है, अश्व शब्द भी आया है, तुरी शब्द भी आया है, तेजन शब्द भी आया है। बहुत सारे शब्दां दे नाल घोड़े नूं मुखातब करके सतगुरां ने बहुत सारा ज्ञान साडी झोली दे विच पाया है। घोड़े तो असी यही गुण लैना है कि जिस तरह घोड़ा सुचेत हो के सौंदा है, थोड़ी जी भी आहट दे नाल ये जाग पैंदा है। असी घोड़े तो सुचेतपुणा लैना है। असी घोड़े तो ये शिक्षा लैनी है कि जिस तरह हर वक्त घोड़ा खड़ा है, असी भी अपने मालक की सेवा वास्ते हर वक्त खड़े रहिए, तैयार रहिए, आलस ना होवे साडे विच। घोड़ा जिस तरह अपने मालक दा वफादार है, असी अपने मालक दे वफादार बनीए। अपनी जिहड़ी लगाम है, अपने मन दी तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मनीए पाइए। इस तरह अपनी लगाम जिहड़ी है वो गुरु दे हाथ विच दे दईए। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। जद असी इस तरह घोड़े दे जीवन विचों कुछ सिक्ख्या लैके अपना जीवन असी इस तरह बतीत करांगे ना, तो बहुत तेज़ रफ्तार दे नाल एक दिन असी परमात्मा तक पहुँच जावांगे। सतगुर जी मेहर करन, मन साडा जिहड़ा है वो साडे काबू दे विच आवे।
ਲਗਾਮ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੀਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।